So currently we are in Rajasthan, that is going into polls in another 2 weeks. We are right now in Pali district, and as you can see there are women sitting right here. So Rajasthan will see a tightrope contest between the BJP and the Congress, and knowing that for the past 3 decades almost Rajasthan has always seen an anti-incumbency trend. So one might only wonder what will happen in Rajasthan this time, whether it's a change or whether it's a continuity. Although Rajasthan has been known to be dominated a lot by caste and community politics, there seems to be a lot of other social issues which are not being talked about enough. For example, if you go to the Barmer district, which is in the west of Rajasthan and one of the largest districts in India, it is known to be a district which has seen water crisis for ages. There has been government that has come, that has gone, but it seems like the water crisis there has never seen a solution. When we went to Ramdev Nagar, which is under the Rohindala Gram Panchayat, which is about 30 kilometers away from the Pakistan-India border, there when you go, the life of a woman starts at 5 a.m. with them going out and collecting water. They wake up at 5 a.m., they go out, they have to stand for almost an hour or so, they have to collect water, they come back, then they go to the fields where they have to work for another 3 hours, then they come back, they attend to the domestic chores, and then they again have to go and fill and collect water. In winters they might get lucky, because in winters they do get water because that's right after the rain harvesting season, but when it comes to the summer, they have to try their luck when they need water. Because of the extreme water crisis there, we do find this thing called tankis there, which the government has built, but most of them they run dry and they have to depend a lot on the groundwater, which is said to be over exploited in Rajasthan. And in a lot of places the groundwater is sweet, but in most of the places the groundwater is sour, which is again filled with the chemicals which come from the industrial pollution. And this has been the case of Rajasthan for over the years. And whether governments come and whether governments go, the question will always lie that what is the permanent solution to providing people with the basic needs of electricity, water, food and shelter. राज तो ऐसा है कि मोदी जी अच्छे ही है। हाँ। और हमें बीजेपी हाल रही है, तो बीजेपी जाएगा, हमें कांग्रेस में तो थोड़ा आड़ा ही कराना पड़ेगा। सही है तो बहुत कर्जा लेता है, वो वने ये दे दो, वने ये दे दो, मोबाइल दे दो, ऐसा कर लो, कहीं दे दिया, कहीं नहीं। तो वनमें भी लोग तो थोड़ा नाराज हो गया कि मोहन तो दिए ही नहीं, वनों दे दिया, अड़ों दे दिया, छोटे छोटे गरीब आदमी तो रह गया कुछ। तो वो भी विवाद ही है। गवर्नमेंट में तो मोदी जी ने आने ने बोल दो, अशोक जी ने बोल मोदी नहीं लेना सब जो कांग्रेस रो आनो बीजेपी रो टेक्सटी जो कोई जाएगा ज़्यादा कर आबाद। हाँ तो हमें देखो चाहे कि कोई ना कोई फायदा बता भाई, तो गवर्नमेंट तो पलटा तो पब्लिक जाते ही है, कह वो भेजा अटने ये फायदो करे तो ये भेजा। हम क्या कांग्रेस चलती, हम क्या पातो पलटो दे देगा, हमें बाद में जाए बार बार बता रहे एक बार कई फायदा करे तो बात ठीक ही है। जैसे कसों ने बीमा की जोड़ा है, तो पशुपाल वाला कोई बीमा नहीं है। भाजपा एक बार किया था एटीजन कैंप, तो पासा कटा दिया कोई भी फायदों में तो भाजपा ही लाख नहीं पर कौन कौन पब्लिक ने हैंड उठाया। जब मैं पशुओं को खूब आ गया, कोई करता गया बीजेपी जावे तो कोई फायदा दिया कोने का बार कोई करता है। मान लो बीमा वगैरह है कराता है तो ठीक है भाई। 70 साल से एक ही समस्या बनी हुई है कि वोट के समय नेता लोग आते हैं और यही कहते हैं कि भाई हम आपके पानी की सुविधा कर देंगे, बिजली, रोड, ये 3 मुद्दों के ऊपर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं 70 साल के अंदर। और 70 साल में भी ये 3 समस्या है जो मूलभूत समस्या है वो आज भी बनी हुई है। आज भी आप आए तो रोड का आपने हाल देखा है, डिलीवरी की समस्या होती है, और कोई आदमी का बहुत सीरियस होता है तो ऐसी रोड है, ऐसी रोड व्यवस्था है जो गर्मियों के समय में और ज़्यादा रेत आ जाती है, तो उस टाइप के रोड भी ऊंचे उठाकर नहीं बनाए गए हैं, उस पर रेत आ जाती है तो ये सारे जाम हो जाते हैं। अप्रैल मई के अंदर ये सारे रोड जाम हो जाते हैं। बिजली भी अभी पहुंची है थोड़ी बहुत। नेटवर्क की समस्या, यहाँ नेटवर्क नहीं, कोई भी इमरजेंसी काम हो तो आप बात नहीं कर सकते हैं।
तो ये सारे जो मूलभूत जो समस्याएं थी उस पे ही 70 सालों के अंदर वोट लड़े जा रहे हैं और ये भी आज की आज वही की बरकरार है। एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन है क्योंकि इतने दुर्गम जहाँ सुविधाएं नहीं हुई तो यहाँ टीचर भी कोई लगना नहीं चाहता है। तो सीधी सी बात है कि जब सुविधाएं नहीं होगी तो यहाँ नौकरी कौन करना चाहेगा। काउंसलिंग के समय इतने दूर दराज जो गांव होते हैं उसमें वो टीचर लोग हैं जो काउंसलिंग में यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो आप जाओगे तो सीनियर स्कूल है वहाँ पे 60 बच्चे 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 या 2 टीचर पूरी स्कूल के 1 से 12 तक के स्कूल है उसमें 1 से 2 टीचर काम ले रहे हैं। अब बताओ ये आने वाला भविष्य यहाँ से कैसे तैयार होगा। तो जब ये मूलभूत सुविधाएं प्रॉपर तरीके से बनेगी, रोड बनेगी, लाइट आएगी, पानी की अच्छी सुविधा होगी तो यहाँ टीचर आएंगे, यहाँ का माहौल सुधरेगा तभी बाहर से लोग आएंगे। अभी ये 70 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत पानी की है, सड़क की दिक्कत है, सब दिक्कत है। और क्या कुछ क्या नहीं दिक्कत है। और क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत स्कूल की बिल्कुल दिक्कत है मास्टर 10 हफ्ते है तो 2 है, इतना है नहीं ज्यादा समस्या जो है सारी समस्या। पानी ऊपर अब गर्मी के मौसम में है नहीं, बाजरी है काम है सारा भी। अबे बात करो महिला को हाँ कान भी रखो भाई और को तो बात करो जो सुविधा कोई है नहीं बिल्कुल। चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पे? चुनाव का हमें क्या पता कौन जीतेगा क्या पता, मेरे को ऐसा मतलब थोड़े पहले वो हवा किसकी चल रही है? हवा तो अमीन की हाथ की हाँ, हवा चल रही है। अभी क्या ना वोट देसो अच्छे जैसा दिखे ना अमीन ना तो हिना बूंद दे वो कहे ना हिना अमीन जी के लोग आते हैं हिना इधर? बताए तो सागड़ा पीठ से ना कोई को पीटे नहीं कई पार्टी देसो ही फिर हाथ को दे दी। अमीन जी के लोग आते हैं इधर पूछने में? पूछने में सारा भी आते हैं रोटी पालते अमीन आते हैं अमीन आते हैं? बूंद भंगड़ के लिए आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आते। उसके बाद नहीं आते अमीन? कोई बात नहीं बात रमेना कोई नहीं आते हैं अभी तक नहीं आए? सुविधा कोई नहीं आती, सुविधा नहीं है कि अभी आए बूंद भंगड़ आज तो आज आए तो 5 साल नहीं आएगा, 5 साल आएगा नहीं इधर कोई भी बूंद दिया उसके बाद में कोई नहीं आएगा। पहचानता नहीं कोई ये कौन आएगा पहचानता नहीं घड़ा मत है।